Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 3 जनवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना रिवीजन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया होस्ट करेगा वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। आई रिपीट, इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। फिर हम बात करेंगे हॉल्गर र्यून की। इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल 2022 के पेरिस मास्टर टाइटल को जीत लिया। आई रिपीट, हॉल्गर र्यून ने मेंस सिंगल 2022 के पेरिस मास्टर टाइटल को जीत लिया है। फिर शिवरीन, शार्लेट एंड अब्दुल कादिर, इनको इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। विराट कोहली, ये वो पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 4000 रन बनाए T20 इंटरनेशनल में। उत्तर प्रदेश की बात करें, ये होस्ट करेगा 2023 का खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। इंपॉर्टेंट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो लोबलिना, प्रवीण, स्वाति एंड अल्फिया, इनको गोल्ड मेडल मिला। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2022 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हरा के टाइटल को जीत लिया है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का किन्होंने जीता, तो इंग्लैंड ने जीता। फिर आ जाता है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस की बात करें तो ये इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मोस को प्रोक्योर करने वाली वो पहली कंट्री कौन बनी थी? वो थी फिलीपींस। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस को किस फाइटर जेट से टेस्ट किया गया था? तो सुकोई 30 MK1 से इसको टेस्ट किया गया था। और इसका टारगेट क्या बना था? इसका टारगेट बना था एक शिप जो कि कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। 450 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी और 2.8 मैक की इसकी स्पीड रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंड, 3 टाइम फीफा वर्ल्ड कप विनर पेले हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमें क्या याद रखना है? पेले ये क्या है? एक फुटबॉलर थे, काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 3 टाइम फीफा वर्ल्ड कप विनर थे। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
अराता इसुजाकी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। काफ़ी फेमस ये आर्किटेक्ट थे और इनको प्रिट्जर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रिट्जर प्राइज क्या अवार्ड होता है? ये वो अवार्ड होता है जो किसी आर्किटेक्ट को दिया जाता है। काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, उनको प्रिट्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने रीअपॉइंट किया सुरेश खटनाहर को एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आई रिपीट, आईडीबीआई बैंक ने रीअपॉइंट किया सुरेश खटनाहर को एज डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आर्ट पार्क आईआईएससी की। आर्ट पार्क क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये आईआईएससी का है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स पे वर्क करती है। इन्होंने अभी गूगल के साथ टाई अप किया ताकि एक लॉन्च किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट वानी को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फाइट वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप की। तो फाइट की बात आ गई तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? बेसिकली चेस से बिलोंग करता है। फिर फाइट का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में रहेगा। अगर मैं फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट की बात करूं, कौन बने? विश्वनाथ आनंद बने, जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, जो कि 1988 में बने थे। तो फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप की बात करूं तो यहाँ पे मेंस में कौन जीते? मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है। और वीमेंस की टाइटल जीती टेन जोंगिंग में। ऑलराइट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इंडिया की सविता श्री ने ब्रॉन्ज मेडल जीता यहाँ पर। और एक चीज़ और याद रखेंगे, मैग्नस कार्लसन का ये 4th रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप था। ठीक है, उसका टाइटल था। नेक्स्ट आ जाते हैं नासा। नासा सेलेक्ट स्पेसएक्स टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर सेंटियल 6B मिशन। सेंटियल 6B मिशन किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है? नासा का है। और नासा ने किस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया ताकि लॉन्च किया जा सके सेंटिनल 6B मिशन? वो रहेगा आपका स्पेसएक्स। स्पेसएक्स किसकी कंपनी रहेगी? इलॉन मस्क की कंपनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे की। नेशनल मैथमेटिक्स डे किसकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है? एस रामानुजन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है। एस रामानुजन काफ़ी फेमस इंडियन रिनॉन्ड मैथमेटिशियन थे और उनके बर्थ एनिवर्सरी पे 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम बात करते हैं सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा से को कंफ्यूज मत करना टेनिस प्लेयर से। ठीक है, ये यूपी से बिलोंग करती हैं सानिया मिर्जा। इन्होंने भी एक एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, वो क्लियर करा और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ये कंट्री की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर जेट पायलट बनने वाली है। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर जेट पायलट कौन बनेंगी? सानिया मिर्जा, जो कहां से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती है, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया है ऑन द नंबर ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द 4th क्वार्टर 2023 फिस्कल ईयर के लिए। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं काफ़ी सारी सेविंग स्कीम्स पे, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, यहाँ पे जो आपके इंटरेस्ट रेट्स है ना, उस पर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इन्होंने रेज कर दिया इंटरेस्ट रेट ऑन द नंबर ऑफ सेविंग स्केल अकाउंट फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर, जो कि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक रहेगा। ठीक, ये रेट्स ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20 to 110 बेसिस पॉइंट्स एंड दे आर नाउ इन द रेंज फ्रॉम 4% to 7.6%। जैसे ऑल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पात्रा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड अदर्स हैव नाउ हायर इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गोट पॉक्स वैक्सीन एंड लंपी प्रोवैक वैक्सीन। एंड इसके लिए जो ये MOU साइन किया गया ना, इन नागपुर महाराष्ट्र किया गया था, इन द प्रेजेंस ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डेप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र
फडणवीस की प्रेजेंस में ये एक एमओयू साइन किया गया ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन की जा सके लंपी प्रोवैक वैक्सीन की। अगर आपको याद हो, ये लंपी स्किन डिजीज अगर आपने देखा हो, न्यूज़ पे फॉलो करते हो, तो कैटल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, 2019 में इंडिया में पहली बार देखी गई थी और इसका पहला केस ओडिशा में रिपोर्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम 2023 के लिए। ये न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम आपकी 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। ठीक है, इसके अंडर क्या है, अराउंड 81 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिशियरीज को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फ्री फूड ग्रेन्स। और किसके अंडर प्रोवाइड किया जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अराउंड 81 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंडर। यहीं पे याद रखेंगे, 2 स्कीम को मिला के ये आपकी बनाई जाएगी स्कीम। एक तो है फूड सब्सिडी टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर एनएफएसए और दूसरा है फूड सब्सिडी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट्स which deals with the procuring, allocating and delivering free food grains to the states under the NFSA। ठीक, और एक चीज और याद रखेंगे, फ्री फूड ग्रेन्स विल इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड ऑल्सो। यहीं पे अगर G20 की बात करें, हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। ठीक है, और थीम क्या है जिसके बेसिस ये इंडिया ने जो थीम रखी है G20 की, वो क्या रहेगी, वो है वसुधैव कुटुंबकम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रज्वाला चैलेंज की। अभी पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि प्रज्वाला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा प्रज्वाला चैलेंज को लॉन्च किया गया था। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन प्रज्वाला चैलेंज बेसिकली है क्या, ये आपकी जो रूरल इकोनॉमी है ना, उसको बढ़ाने की बात की गई, उसको ट्रांसफॉर्म करने की यहाँ पे बात की गई ताकि नए आइडियाज आ सके। नए आइडियाज़ को इनवाइट किया गया, सॉल्यूशंस को, रिसर्चेस को बात की गई, नए नए हम सॉल्यूशंस को लाने की बात की गई कि कैसे हम रूरल इकोनॉमी को और बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया फॉर इनवाइटिंग आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रज्वाला चैलेंज ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशन वाइड इनिशिएटिव रहेगा जो प्रोवाइड करेगा थॉटफुल माइंड विद द प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट न्यू इनोवेटिव एंड स्केलेबल पाथवेज फॉर रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। एप्लीकेशंस आर ओपन फ्रॉम 29th of December to 31st of January। The mission will acknowledge the shortlisted ideas and offer them incubation, support, and mentorship from a team of subject matter experts. The top 5 ideas will be rewarded with 2 lakh rupees each, and the winners will be announced on the 8th of March 2013। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोशिया। क्रोशिया ने अभी रिसेंटली यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखो। ठीक है, इन्होंने जो अपनी करेंसी थी उसको त्याग दिया है। अब अपनी करेंसी को छोड़ने के बाद इन्होंने यूरो की करेंसी को अपना लिया है। ठीक, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो यही याद रखनी है आपकी। इनकी करेंसी थी कूना, उन्होंने इसको छोड़ दिया और अब इसको किसको अपना लिया है, यूरो को। इससे क्या हुआ, ये अब शेनिगन के एरिया के पार्ट बन गए हैं। अब ये शेनिगन एरिया के पार्ट बनने से क्या होगा कि जो भी आपके यूरोपियन नेशन कंट्रीज हैं वहां पर ये इजीली ट्रैवल कर पाएंगे यहाँ के लोग, और वहां के लोग यहाँ पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बॉर्डर के रिस्ट्रिक्शन के बजाय यहाँ पे इजीली ये एक दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल कर पाएंगे। अगर हम बात करें क्रोशिया की, ये यंगेस्ट मेंबर बना है यूरोपियन यूनियन का जिन्होंने यूरो अडॉप्ट किया है, और क्रोशिया 20th मेंबर बन गया है यूरोजोन का एंड 27th कंट्री बन गया टू ज्वाइन द पासपोर्ट फ्री शेनिगन जोन को। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वो कौन सी कंट्री बनी है जिन्होंने यूरोजोन को अपनाया या फिर यूरो करेंसी को अपना लिया, वो है क्रोशिया। ठीक है, और उन्होंने कौन सी करेंसी छोड़ दी, अपनी कूनो करेंसी को छोड़ के वो उन्होंने यूरो को अपना लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी रिसेंटली RBI ने एक डाटा रिलीज किया कि जो सेकेंड क्वार्टर था फिस्कल ईयर 2023 के लिए, मतलब 2022 से 2023 के लिए, इस सेकेंड क्वार्टर में जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो बढ़ गया टू 4.4%। इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या रहा कि जो इंडिया ने इंपोर्ट करे ना वो ज़्यादा थे,
मतलब इंडिया ने चीज़ें मंगाई वो ज़्यादा थी और जो एक्सपोर्ट करे वो कम थे। इसका रीज़न क्या है कि इंडिया ने रशिया से, अगर आपको याद हो, रशिया के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इवन जो हमने गैस, क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कराया, उसकी वजह से हम देखेंगे जो रशिया और इंडिया का भी जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया ने अभी रिसेंटली जब ये नॉस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट खुलने की बात की गई कि जब रशियन कंपनीज इंडिया में अपने अकाउंट खोलेगी और जो ट्रेड इंडियन रुपीस में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके दौरान भी इंडिया ने स्ट्रेस दिया कि हमें इंडियन जो रशिया की मार्केट्स हैं, इंडियन कंपनीज को रशिया की मार्केट का एक्सेस चाहिए ताकि जो ये ट्रेड डेफिसिट है इसको हम पूरा कर सकें। मतलब फिर अगर हमें एक्सेस मिल जाएगा इंडियन कंपनीज को रशिया की मार्केट का, तो क्या होगा, इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएगी रशिया में, जिससे क्या होगा कि हम तो क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, हम तो गैसेस मंगा रहे हैं रशिया से, तो वहां पे जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं और फिर हम जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे रशियन मार्केट में, वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बैलेंस हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा, लेकिन इंपोर्ट करे जा रहा है क्रूड ऑयल, गैस को रशिया से बहुत ज्यादा, जिससे क्या हो रहा है कि जो ये गैप है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 4.4% ऑफ द जीडीपी का हमें देखने को मिला करंट अकाउंट डेफिसिट इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अभी रिसेंटली हम जानते हैं जैसे आपको यूपीआई करना होता है तो आप बार क्यूआर कोड लगा देते हैं, क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, इजीली आपकी पेमेंट हो जाएगी। चाहे आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करना हो मनी, चाहे आपको यूपीआई करना हो, चाहे बैंक टू बैंक करना हो, या कैसे भी पैसा ट्रांसफर करना हो, आप जाइए, हर जगह आपके क्यूआर कोड लगे हुए हैं, उसको स्कैन कीजिए और पेमेंट हो जाती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या किया इंडियन बैंक ने, इन्होंने क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया फॉर सीईएससी मैसूर। अब ये सीईएससी मैसूर क्या है, चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के लिए इन्होंने क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया। अब ये क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है कि अपने बिल के साथ ना एक क्यूआर कोड भेज देगा। अब लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उस स्कैन करते जैसे ही वो उसको स्कैन करेंगे ना, वो इजीली डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, जहाँ पे उनका जो भी अमाउंट का बिल है वो उनको पे कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों को वेबसाइट नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उनको पोर्टल में जाके जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को आज देखो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को जब तक चीज़ें सिखाई नहीं जाएंगी, कैसे मोबाइल ऑपरेट करते हैं, हर किसी को मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता। आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी फोन यूज़ अच्छे से करना नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए ये ईजी बनाने के लिए कि वो बस स्कैन करें और ईजिली पेमेंट हो सके, इसीलिए ये क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया इंडियन बैंक के द्वारा फॉर सीईएससी मैसूर, जो कि है चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी त्रिपुरा स्टेट को 2275 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि ये अपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना उसको बेटर कर सके। जो पुराने खराब पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अच्छी नहीं है उसको चेंज किया जा सके, जो खराब लाइन हो रखी है उसको चेंज किया जा सके, नई लाइंस बिछाई जा सकें। तो इस सारे प्रोसेस के लिए जो पूरा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बेटर करने के लिए त्रिपुरा को अभी 2275 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, वो इन अमाउंट को फंड करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस 2275 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी 1020 करोड़ रुपए, वाइल द स्टेट विल प्रोवाइड 4055 करोड़ रुपए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ। इन्होंने पार्टनर किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए फॉर एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ के द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम रहेगा डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये कहाँ पर रहेगा, ये कैंपस यूनिट है जो कि सेटअप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, ताकि एडवांस
डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च किया जा सके फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए। ऑलराइट, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ के द्वारा टाइप किया गया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोलने के लिए, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम रहेगा डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा फॉर द एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए। ऑलराइट, हाईली इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की। अभी रिसेंटली लुइस इनेशियो लूला दे सिल्वा, इनको 39th प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्राजील का। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। कौन बने हैं 39th प्रेसिडेंट? वो है लुइस इनेशियो लूला दे सिल्वा। ऑलराइट, इनका जन्म कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ब्राजील में ही हुआ था। और ब्राजील की अभी हमने न्यूज़ पढ़ी, पेले जो कि एक काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे, ब्राजील से ही बिलोंग करते हैं, 3 टाइम फीफा वर्ल्ड कप विनर थे, इनका भी निधन हो गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव की। अजय कुमार श्रीवास्तव ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किनको इंडियन ओवरसीज बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? वो है अजय कुमार श्रीवास्तव। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे। इनकी जो अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए की गई है। 1 जनवरी 2023 से इनकी अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव हमने देख लिया, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। 1937 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक को। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? चेन्नई, तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ने अभी मैथिली ठाकुर, इनको बिहार स्टेट आइकन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये तो हो गया, ऐसे पूछ लेंगे कि बिहार स्टेट आइकन के तौर पे किनको अपॉइंट किया गया, वो है मैथिली ठाकुर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि किनको अभी चूज किया गया फॉर द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी, वो रहेंगी मिथिलिया ठाकुर। मिथिलिया ठाकुर आपकी इंडियन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक ट्रेंड म्यूजिशियन है, और इनको अभी बिहार स्टेट आइकन के तौर पे सेलेक्ट किया गया, एज वेल एज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी के लिए भी सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था? फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फोक म्यूजिक ऑफ बिहार इन 2021। ऑलराइट, दोनों चीज याद रखनी है। फिर चलते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर। स्पोर्ट्स न्यूज में देखें तो फाइड मैंने बताया था चेस से रिलेटेड होता है। फाइड का हेडक्वार्टर का लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक, फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद, 1988 में पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के। तो अभी रिसेंटली फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो कोनेरू हम्पी जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्माटी कजाकिस्तान में हुआ था इवेंट, जहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए इन द वीमेन ब्लिट्ज चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौस्तुभ चैटर्जी। कौस्तुभ चैटर्जी इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं। MPL 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप हो रही थी, जहां पर इनको 78th ग्रैंड मास्टर का टाइटल घोषित किया गया। ये है कौस्तुभ चैटर्जी, 19 साल के हैं, और ये कहां से बिलोंग करते हैं कौस्तुभ चैटर्जी? ये आपके कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये 10th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट ऑब्यूटरी की बात करते हैं। टाटा ग्रुप्स फॉर्मर टाटा सन्स डायरेक्टर एंड अ पद्मश्री अवार्डी RK कृष्ण कुमार, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन एट द एज ऑफ 84 हुआ। मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। ठीक है, और ये इनका जो जन्म हुआ था 1938 में हुआ था, केरला में हुआ था। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन 1963, और उसके बाद फिर ये टाटा फिनले के साथ जुड़े हुए थे 1965 में,
एंड लेटर ऑन फिर उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया साउथ इंडिया प्लेटफॉर्म प्लांटेशन का इन 1982। फिर इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2009 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो फॉर्मर टाटा सन्स डायरेक्टर पद्मश्री अवार्डी आर के कृष्णा कुमार, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं अनीता पॉइंटर। ये ग्रैमी विनिंग सिंगर है, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 74। ऑलराइट, अनीता पॉइंटर 23 जनवरी 1984 को इनका जन्म हुआ था ऑकलैंड कैलिफोर्निया यूएसए में। और शी द पॉइंटर सिस्टर्स ग्रुप वन 3 ग्रैमी थ्रू आउट देयर करियर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर आईएएस। इनके द्वारा एक बुक को ऑथर किया गया, बुक का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, फॉर्मर आईएएस काकी माधव राव या फिर आईएएस के माधव राव के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। और इस बुक में बताया गया है विच एड्रेसेस द डिटेल्स अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज एट द ग्राउंड लेवल एंड ऑल्सो फिल्स द गैप इन द नॉलेज अबाउट द माइक्रो पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा एमएसको बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एंड अगर के माधव राव की बात करें, ये 1962 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जिनको हु हैज़ बीन रिटायर्ड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। ही वॉज बॉर्न इन विलेज ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इन 1939। ऑलराइट, इन्होंने सर्व किया एज द आरबीआई के डायरेक्टर का एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सब कमिटी बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सबविजन का। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं एकदम क्विक रिवीजन पे विद द हेल्प ऑफ वन लाइनर्स। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंक्रीज किया इंटरेस्ट रेट ऑन अ नंबर ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू होंगी। एक एमओयू साइन किया गया था कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए फॉर द इंडिजीनियसली डेवलप्ड लंपी प्रोवैक वैक्सीन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम 2023 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया प्रज्वाला चैलेंज। इससे क्या होगा कि नए आइडिया, सॉल्यूशन और एक्शंस को लाने की बात की गई ताकि रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। क्रोएशिया ने शेनेगन जोन को ज्वाइन कर लिया है और इन्होंने अपनी करेंसी कूना को छोड़ के यूरो को अपना लिया है। सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स टू 4.4% ऑफ द जीडीपी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। फिर इंडियन बैंक ने अनवेल किया क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर सीईएससी मैसूर। त्रिपुरा ने साइन किया 2275 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इम्प्रूव द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ ने पार्टनर किया टू इंट्रोड्यूस डीआईए, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डीआईए आरसीओई फॉर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च के ऊपर, मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने के लिए फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोलने की बात की गई बाय आईआईटी मद्रास एंड डीआरडीओ। फिर लुइस इनेशियो लुला दे सिल्वा, इनको 39th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया ब्राजील का। अजय कुमार श्रीवास्तव ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। इलेक्शन कमिश्नर ने अपॉइंट किया मैथिली ठाकुर को एज द बिहार स्टेट आइकन। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो कॉनेरू हम्पी इंडिया से हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप। कौस्तुभ चैटर्जी ये इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इन द एमपीएल 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप। कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, 19 साल के हैं और ये 10th ग्रैंड मास्टर बने हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। फॉर्मर टाटा सन्स डायरेक्टर पद्मश्री अवार्डी आर के कृष्णा कुमार, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ग्रैमी विनिंग सिंगर अनीता पॉइंटर, इनका भी निधन हो गया। एंड फॉर्मर आईएएस काकी माधव राव, इन्होंने ऑथर की एक नई बुक जो कि है ब्रेकिंग बैरियर्स। और याद रखेंगे आर के कृष्णा कुमार जिनका रिसेंटली निधन हुआ था, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में। ठीक है, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। तो दोस्तों अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन नेम्ड एज द G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट। दूसरा, इंडिया साइंड $125 मिलियन डील विद विच इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव द अर्बन सर्विसेज इन
Tamil Nadu. Third, which union ministry has been approved as the nodal ministry for the matters relating to the online gaming? Fourth, what is the name of the digital project funded by the Google to map the language diversity of India? और हमने अभी डिस्कस किया है ये. फिफ्थ, दक्ष ये एक पेमेंट्स फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल मेंटेन बाय विच इंस्टीट्यूशन. तो दोस्तों ये थे आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस. आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा. अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, जो अगर आप हम कंटेंट आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं ऐसे सेशन पे. अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके बताना ज़रूर हमें. अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को. इसके अलावा भी आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, जिससे आपको हमारे चैनल की जो मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो मिल जाएंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखना है कि हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो रिवीजन है करंट अफेयर्स की वो बार बार होती रहती है, बार बार कंटेंट आपके सामने आता रहता है. फिर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं, जिससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, रिवीजन हो जाती है. जैसे देखें इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारा कंटेंट हम अपलोड करते हैं ताकि बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिवीजन की जा सके. इसके अलावा आप हमारी क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वहीं से आप देखेंगे आप हमारे जो कोर्स हम ऑफर करते हैं वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके. देखो आप नोट्स बना रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फिर आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप नोट्स पढ़ रहे हैं बार बार, तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप करते रहेंगे ना डेली बेसिस पे, और हाँ होमवर्क भी कर रहे हैं, तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे ना, तो आई विल मेक श्योर कि जो आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्टर डोमेन है ना वो कभी नहीं छूटे. आपके एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, आप देखेंगे कि वो सारे करंट अफेयर्स आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी. सारे क्योंकि आपने पढ़े इतने अच्छे से हुए हैं, आपको सारा करंट अफेयर्स रिवाइज करा देते हैं, सब कुछ आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो जो भी सामने आता है ना करंट अफेयर्स वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू and have a nice day. That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.